آپ دیکھ رہے ہیں ایمان ہے رمضان. یہ ہماری اسپیشل رمضان کی ٹرانسمیشن ہے. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے, خود کو خوش رکھ رہے ہوں گے اور روزے بھی اچھے گزر رہے ہوں گے. آج جس موضوع پہ ہم اپنے مہمانوں سے بات چیت کریں گے وہ ہے دعا اور استغفار. دعا اور استغفار کی کیا فضیلت ہے, کیوں یہ اتنے اہم ہیں اور ان کے آداب کیا ہیں, اور کس طرح سے اگر ہم دعا اور استغفار کی کثرت سے ان کو استعمال کریں اپنی ڈیلی لائف میں, اپنی زندگی میں, تو کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو, اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں. دعا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے اسلام کی تاریخ میں بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ پیغمبروں نے اس طریقے سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دکھائے. ہمارے لیے ہر چیز میں, ہر عمل میں دعا رکھی گئی ہے. آپ کھانا بنا رہے ہوں, کھانا کھا رہے ہوں یا کھانا کھا چکے ہوں تو دعا رکھی گئی ہے. آپ گھر سے باہر جا رہے ہوں, گھر میں داخل ہو رہے ہوں تو دعا رکھی گئی ہے. آپ کچھ اچھا دیکھ لیتے ہیں, کچھ برا دیکھ لیتے ہیں تو دعا دی گئی ہے. چھینکتے وقت, کھانستے وقت, اٹھتے بیٹھتے, سوتے جاگتے, چلتے پھرتے, یہاں تک کہ غسل خانے میں بھی داخل ہو رہے ہیں تو دعا رکھی گئی ہے. لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ ہمارے ہر کام میں دعائیں کیوں رکھی گئی ہیں, کیوں دی گئی ہیں, کیوں ہمارے لیے یہ ضروری ہے؟ دیکھا جائے تو دعا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹیوٹی کا ذریعہ ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں, اس کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور پھر جب ہم اپنے کسی بھی کام میں, کسی بھی سوچ میں, کسی بھی فیصلے میں اللہ کو شامل کر دیتے ہیں تو پھر وہ کام آسان بھی ہو جاتا ہے, پاسبل بھی ہو جاتا ہے. اور اگر پورا نہیں بھی ہوتا ہے تو یقین جانیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سکون اور قرار دے دیتا ہے, ہماری بے چینی کو دور کر دیتا ہے. تو میرا خیال سے بہتر ہے کہ ہم ان دعاؤں کا اچھے سے استعمال کریں, اس سوچ کے ساتھ کہ جب ہم اپنے ہر کام میں, ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کو شامل کریں گے, اس کو اول درجہ دیں گے, اس کو سب سے آگے رکھیں گے, تو پھر ہم کامیاب بھی ہوں گے, ہمیں سکون بھی ملے گا اور ہمیں خوشی بھی ملے گی. تو آج دعا اور استغفار کے حوالے سے اگر آپ کے پاس بھی کوئی سوال ہے تو آپ ضرور ہماری اس ٹرانسمیشن میں کال کیجیے گا. ہمارے مہمان یہاں پر موجود ہیں, آئیے ذرا ان کا مختصر سا تعارف کرواتے ہیں. پہلی مرتبہ آئی ہیں یہ مسالہ چینل پہ, ایک ایجوکیشنسٹ ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, ایز این اینکر پرسن بھی ہم نے ان کو مختلف چینلز پہ بات کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے, اور ان کا جو انداز بیان ہے وہ لوگوں کو کافی متاثر کرتا ہے, اور میں بھی ان میں سے ایک ہوں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مسز ارم ضیاء. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن پہ, اینڈ فرسٹ ٹائم آ رہی ہیں. اچھا جی, ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر یاسمین. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر یاسمین, آپ نے وقت نکالا. آپ سے تو ہماری پہلے بھی ملاقات ہوئی, ہمارے انفیکٹ پہلے جو دن تھا ٹرانسمیشن کا اس میں آپ ہمارے ساتھ بہت اچھے سے بیان کرتی ہیں, اور چاہے سوشل ایشوز ہوں یا ریلیجس ایشوز ہیں, ایسی باتیں جو ہم عام انسان سمجھ سکتا ہے تو آسان کر دیتی ہیں آپ. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آپ کو پتہ ہے کچن کاؤنٹر میں کون ہوتے ہیں, کون ہوتے ہیں؟ شیف حمزہ ہوتے ہیں. آئیے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, آج کہاں کا, کس کا, کہاں سے آئے ہیں یہ کپڑے؟ آج بھی سیم ڈیزائنر عمران ابن بخش نے وارڈروب ڈیزائن کیا. ان کو مجھے کریڈٹ دینا چاہیے کیونکہ میں ہر بار آپ سے پوچھتی ہوں, لیکن آپ کا بینڈ چلے نہ چلے میں پوچھ لیتی ہوں. اور آج کی خاص بات آپ نے بتایا آپ کے خصے ہیں, ان کی کیا خاص بات ہے؟ یہ کھیڑیاں خصے ہوتے ہیں, ٹپیکلی زردوزی کا کام ہوتا ہے ان خصوں پہ. اچھا. اور یہ اندرون پنجاب کے اندر ملتا ہے. تو یہ آپ کو کسی نے گفٹ کیا یا آپ نے جا کر؟ میں ابھی لاسٹ ٹرپ لاہور کا تھا تو وہیں سے میں لے کر آیا, کیونکہ یہ بڑی ڈیٹیل کام ہوتی ہے, اور یہ وہ چیزیں ایتھنیسٹی جو ختم ہوتی جا رہی ہے, یہ ہمارے کلچر کا جو حصہ ہے. اچھا حمزہ, آئیے ذرا کچن کی طرح مجھے بتائیں کہ آج ہم آپ سے کیا سیکھ رہے ہیں. اچھا, آج بہت دو فیوژنز ہیں جس میں مجھے بہت کوئک کرنا ہوگا. پہلے آپ کو اسپائسی فوڈ کتنا پسند ہے مجھے بتائیں. ہاں اوکے ہے, بس بہت زیادہ اسپائسی نہیں, چکر آنے لگتے ہیں مجھے. آج کل تو ایک ایکسٹریم اسپائسی کورین نوڈلز چل رہے ہیں, تو آج ہم کولسن ایگ نوڈلز سے ڈینڈن نوڈلز بنائیں گے. اوہ اچھا, تو یہ آپ میرا خیال سے پانی اسی کے لیے ابال رہے ہیں؟ بالکل, میں اس کے لیے ابال رہا ہوں. صحیح جی. کولسن کا نام ہم سب جانتے ہیں, کولسن دی پائنیئرز ان پاستا. ہمارے ساتھ آج کولسن برانڈ ہے, اور ان کی آپ کو بہت اچھی رینج اور ورائٹی ملتی ہے, اور ہر جگہ ہر اسٹور پہ اویلیبل ہے یہ برانڈ. یہی برانڈ کی خاص بات ہوتی ہے کہ وہ آپ جہاں جائیں, جس شاپ میں جائیں, آپ کو
अवेलेबल हो। तो इसको कितनी देर आप पकाएंगे जब तक कि वो एज पर इंस्ट्रक्शंस 5 मिनट में ये कुक्ड हो जाएंगे। उसके बाद मैं सॉस बनाऊंगा। और आज एक फ्यूजन है और मेरी आज कुछ बंगाली और पता नहीं क्या क्या आप बना रहे हैं। देखिए कल्चर रिवाइव की बात होती है तो मैं आज एक हमारी एक फ्यूजन कैलकटिन लाइक कलकत्ता की बंगाली क्रेप स्प्रिंग रोल्स बनाऊंगा जिसको पंतरास कहते हैं। अच्छा, तो बहुत सारे व्यूअर इंटरनेशनल व्यूअर्स हमारे पहचान गए होंगे उसको पंतरास कहते हैं। उसके बेसिकली हम बैटर बनाते हैं तो बैटर भी मैं आपके साथ साथ बना लेता हूँ। अच्छा, मैं मतलब आगे ना जाऊँ, अपनी ट्रांसमिशन का आगाज ना करूँ, आज मेरा काम बहुत ज्यादा है। सिंपल मैं बैटर बना लेता हूँ। उसके बाद हम अच्छा क्या डाल रहे हैं इसकी मैरिनेशन पे आते हैं। ठीक है जी। 1 कप मैदा डालना है। सही है, ठीक है। 1 कप मैदा डालने के बाद इसमें अंडा जाएगा। अच्छा, ये जैसे क्रेप्स का होता है। बिल्कुल ठीक है, सही है। लेकिन वो तो हमारा सादा होता है ना, मीठा नहीं होता। ठीक है। इसमें हम नमकीन कुछ चीज़ें डालेंगे, साथ ही साथ इसमें जीरा पाउडर। सही है। थोड़ा सा इसमें जर्दे का रंग। ओह अच्छा, तभी ये येलोइश कलर के। और साथ साथ रेड चिली पाउडर। ठीक है। और पानी हस्बे जरूरत इतना फेंटना है कि ये बिल्कुल पानी जैसा बेस होना चाहिए। ठीक है, सही है। जब तक आप फेंटने का काम आपने मुझसे करवाना था ना, अब आप ही कीजिए। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी अक्सा भी मौजूद है जिनसे हम सुनते हैं और अपनी ट्रांसमिशन का आगाज करते हैं। अक्सा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज हम क्या सुन रहे हैं? नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाह कीजिए प्लीज। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। कि हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। अक्सा, बहुत खूब। ऐसा लग रहा था आज बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ आपने सुनाया है कलाम। जी जी, ये कलाम बेसिकली मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो इसलिए मैंने कहा चले आज आप सबको भी सुना देती हूँ। वो आपकी वो टोन से ना, वो अंदर से वो पता चल जाता ना कि कौन क्या कितने फोकस के साथ। खैर एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया, हमने बाकायदा अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ किया है। हम लोग एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है दुआ और इस्तिग़फ़ार, उसकी फ़जीलत जानेंगे, उसके आदाब जानेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें।
खुशामदीद, आप देख रहे हैं ईमान है रमज़ान और ये हमारी स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन है। कुकिंग हमने शुरू कर दी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, ख़ास ये रमज़ान का महीना होता है और इन लोगों का साथ होता है, इनका तो हम शुक्रिया अदा करते ही हैं। एक बहुत ही ट्रस्टेड नाम हमारे मुल्क का, अगर हम डिश वॉशिंग की, बर्तन धोने वाले लिक्विड की बात करते हैं तो हमारे पास है सूफ़ी सफ़ोन, और ना सिर्फ लिक्विड डिश वॉशिंग बल्कि अब इनका एक सोप जार भी है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आप अपने घर में, अपने किचन में रखेंगी तो बेहतरीन बर्तन की धुलाई आप कर सकेंगे। इनफैक्ट इनके जो डी ग्रीसिंग वाली क्वालिटी है वो बड़ी पावरफुल है। चिकने से चिकने दाग भी बर्तनों से ये आसानी से हल कर देते हैं। अच्छा जी, क्रेप्स बनना शुरू हो गए हैं। शेफ़ हमज़ा, आपने मिक्सचर तो हमें पहले ही उसमें बता दिया था, बिल्कुल जो कुछ भी था, इसके रेसिपी कार्ड भी चल रही है, अगर आप देखना चाहते हो तो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। ये आप कितने अभी बना के रख रहे हैं? अच्छे खासे में बना लूँगा, अच्छे खासे, मुझे लग रहा है सबको खाने और थोड़ी सी चीटिंग भी की है, हम पहले से भी बना के लेकर आए हुए हैं, तो ये इसमें टाइम लगता है फोल्ड करने में, वो फोल्डिंग हम दिखा देंगे जब तक ये बन रहा है। अब मैं आ जाता हूँ कीमे की स्टफिंग जो इसके अंदर की जाएगी। सही है जी, और इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं नेचुरल ऑयल, और जो कि नो प्रिजर्वेटिव्स एंड नो केमिकल्स, और आसानी से और हेल्दी खाना अगर बनाना है नेचुरल ऑयल इस्तेमाल कीजिए इस पे। और ये आप कर रहे हैं कीमा? हाँ जी, ऑलमोस्ट 550 ग्राम कीमा है। बीफ, मटन? बीफ कीमा, मटन तो और मजे का लगता है। ठीक है। और ये कोलसन के जो हमने स्पैगेटी बॉईल की थी, ये हो गई है? हाँ, ये एग नूडल्स बॉईल हो गए। अब मैं इसको ड्रेन कर लूँगा, लेकिन मैं कीमे के ऊपर आ जाता हूँ। सही है। इसमें कुछ क्या क्या डालना है वो बता दें हम, मैं एक ही साथ सब कुछ डाल दूँ ताकि टाइम कम बचे हमारा। बिल्कुल सही, समझ गए हैं। चिलीज डाल दी, ठीक है। दोबारा इसमें ये इसमें धनिया पाउडर जाएगा। सही है, ठीक है। साथ ही साथ अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 से 1.5 दरमियानी प्याज। ठीक है, ठीक है। साथ ही साथ धनिया। अच्छा, धनिया भी अभी शुरू में ही? हाँ, स्टार्टिंग में डाल दें ताकि उसका फ्लेवर अच्छा है। और फिर नमक, और साथ ही साथ रेड चिली पाउडर। ये काम आपने बहुत अच्छा किया कि सारी इंग्रेडिएंट्स डाल दी हैं। अब ये कुक होता रहेगा। सही है जी। अब मैं फाइनली अपने मेहमानों की तरफ बढ़ूंगी और हमारा आज का जो टॉपिक है, इरम आपा, सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगी, दुआ और इस्तग़फ़ार। तो दुआ के हवाले से अगर हम बात करें, आप क्या कहती हैं कि दुआ असल में है क्या, और इसमें कितनी ताकत है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ मोमिन का हथियार है। अब हथियार क्यों होते हैं? हथियार हमारी हिफाजत के लिए। अल्लाह ने इंसान को दुआ की सलाहियत देकर उसको एक हथियार से नवाज दिया कि तुम जब परेशान हो, तुम जब फिक्रमंद हो, तुम जब डरे हुए हो, जब तुम्हें ये एहसास हो कि कुछ नहीं है, जब अंधेरा ही अंधेरा हो, कुछ ना दिख रहा हो, तो दुआ करो। दुआ करो, मैं मौजूद हूँगा, कि मुझसे बड़ी हिफाजत करने वाला कोई नहीं, मुझसे ज़्यादा दिलासा देने वाला कोई नहीं, मुझसे ज़्यादा इत्मीनान दिलाने वाला कोई नहीं, मुझसे ज़्यादा सुनने वाला कोई नहीं, मुझसे ज़्यादा अज़मत वाला कोई नहीं। बेशक। तो बेसिकली दुआ जो है ना, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से राज़ो नियाज़ है। इंसान जो बात दुनिया में किसी से नहीं कह सकता, झिझकता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सजदे में जाके कह देता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से झिझकता नहीं है, क्योंकि वो तो रात के अंधेरों में स्याह पर्दों के बावजूद भी देखता है, तो उससे कैसा पर्दा, उससे कैसी झिझक। अब बात अपनी सही हो या गलत हो, लेकिन इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बयान करता है। तो शेयरिंग का जो एक है, जैसे हम कोई करीबी रिश्तेदार हो या दोस्त से करते हैं, अल्लाह से करते हैं। अब वो अल्लाह ने दुआ का ज़रिया दिया कि तुम दुआ के ज़रिए मेरे नज़दीक आओ, कि दुआ इबादत भी है, कि इंसान जितने देर तक दुआ मांगता है। हमारे यहाँ एक बहुत गलत चीज़ मैं देख रही हूँ जो डेवलप होती जा रही है, कि लोग नमाज के बाद फ़ौरन उठ जाते हैं। ये तो है, दुआ नहीं मांगते। और अगर मांगते भी है ना इरम आपा, ऐसा है कि वो जो घिसी पिटी एक लाइन होती है ना, वो जो एक रूटीन बन गया है, और अल्लाह गाफिल दिल की दुआ नहीं सुनता। ठीक है, तो दुआ इबादत है। अब नमाज पढ़ने के बाद जितनी देर दुआ मांगेंगे, आप हालत इबादत में रहेंगे। और यहाँ मैं, क्योंकि आज यौम आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, तो मैं एक बहुत खूबसूरत बात यहाँ करना चाहूँगी कि हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जब तुम किसी की कुछ मदद करो, किसी को खैरात दो, तो उससे कभी भी अपने लिए दुआ के लिए ना कहो। अच्छा,
अब बहुत गहरी बात है किरण, उससे दुआ के लिए ना कहो कि अपनी दीवी चीज की कीमत उससे ना वसूल करो। अच्छा अच्छा, क्योंकि इस चीज की कीमत तो तुम्हें देने वाला वो है जिसके नाम पे तुम दे रहे हो। तो अगर तुमने इस शख्स से कह दिया कि मेरे लिए दुआ करो, तो तुमने तो उस चीज की कीमत वसूल कर ली। सही है। दे दो और उसके ऊपर छोड़ दो। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप देखो इतनी बड़ी इस्लाम की फ़क़िया गुजरी, दरगाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन तालिबा गुजरी, बेहतरीन मौलमा गुजरी, तकरीबन 2000 से ज़्यादा हदीस आपसे मुंसलिक हैं। सरकार अलैहिस्सलाम की चादर और चार दीवारी से मुंसलिक 90% अमूर जो हैं वो आपसे मुंसलिक हैं। और आधा दीन, बहुत बेशुमार मुफक्किरीन के इसके ऊपर इज्तिहाद है कि आधा दीन आपके ज़रिए पहुँचा। सरकार अलैहिस्सलाम ने जब पर्दा फरमा लिया, और फिर तुम देखो कि हमारे एक जो बहुत है कुछ सो कॉल्ड वो बना हुआ है कि जी औरत पढ़ा नहीं सकती, औरत ये नहीं कर सकती, औरत वो नहीं कर सकती। तो मैं ये कहती हूँ कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो सबसे बड़ी फ़क़िया गुजरी, मौलमा गुजरी, उन्होंने असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाया है पर्दा फरमाने के बाद सरकार अलैहिस्सलाम के। तो जिन्होंने असहाब को पढ़ाया, जब एक औरत असहाब को पढ़ा सकती है तो सोचो वो दुनिया में क्या नहीं कर सकती। बिल्कुल, ठीक है। तो हमें एक ये दुआ की बहुत खूबसूरत बात, क्योंकि हज़रत आयशा से रिलेटेड थी, तो मैंने यहाँ बताना ज़रूर समझी। दुआ मांगा करें, दिल से मांगा करें, और इस यकीन के साथ मांगा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ सुन रहा है। और सरकार अलैहिस्सलाम के और अहले बैते अतहार के सदक़े में मांगा करें, और अल्लाह को उसकी बड़ाई का, उसकी किबरियाई का, उसकी अज़मत का सदका दिया करें। तो ये मतलब एक तरह से आदाब हैं दुआ के। डॉक्टर यास्मीन, आप क्या कहेंगी दुआ के हवाले से, क्या आदाब हैं? जैसे इरम ने कहा कि दुआ जो है, बेसिकली दुआ का असल मतलब तो ये कि मांगना और सवाल करना। और वैसे ये भी बताया गया, हुज़ूर वसल्लम ने हमें बताया कि दुआ जो है ऐन इबादत भी है। तो दुआ जाहिर सी बात है, जैसे आपने प्रोग्राम शुरू करते हुए बड़ी अच्छी बात की कि हर मुसलमान का उठना बैठना चलना फिरना हर चीज़ के लिए दुआ है। हम किसी से मिलते हैं तो अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, उसको दुआ कहते हैं। सोने के लिए जाते हैं तो सोने की दुआ पढ़ते हैं, उठने की दुआ, सवारी में जाते हैं, घर से हर चीज़ की दुआ है। तो इसका मतलब दुआ हमारी ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, शील्ड जाती है आपको प्रोटेक्शन है, हर लिहाज दुआ से। करो। तो दुआ तो है ही ज़रूरी, और उसके आदाब ये हैं कि अगर आप प्रॉपरली बैठ के दुआ मांगे तो सबसे पहले साफ पाक होके, बावज़ू होके, क़िबला रूह होके, और सबसे पहले अल्लाह ताला की एहतमाम करें। अल्लाह से राब्ते में आप किसी आम आदमी से तो नहीं मांगे ना, इस खालिक़ कायनात के आगे वो करें। तो उसके बाद आप क़िबला रूह के दुआ मांगे, अल्लाह ताला की हम्दो सना करें, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजें, और उसके बाद अपनी दुआ मांगे, वो भी इंतहाई आजीज़ी से गिड़गिड़ा कर। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में पढ़वाया ना कि उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया, कि अपनी दुआ जो है गिड़गिड़ा कर और चुपके चुपके मांगो। तो चुपके चुपके हम किससे बात करते हैं? अपने बहुत करीबी शख्स से बात करते हैं। और आहिस्तगी से बात करना वैसे भी बहुत अच्छे मैनर्स में आता है। आप जब ज़ोर से दुआ मांगते हैं तो कुछ दुआ मांग के आप हो जाते हैं, कुछ लोगों को आपकी दुआओं का पता चल जाता है। आपको आराम से, चुपके से और राजदारी से दुआ मांगनी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला जो आपकी रगे गुलू से भी करीब है वो आपकी बात सुने। और अल्लाह ताला दुआ मांगने वाले की दुआ ज़रूर कबूल करता है और रहमत बरसाता है। ऐसा ये हम अक्सर सुनते हैं कि दुआ के कबूल होने की कोई घड़ी होती है। तो ये जो कबूलियत की घड़ी है, क्या ये वाकई घड़ी होती है, या फिर जिस वक्त हम अपने मन में फोकस के साथ, सिंसियरिटी के साथ और वो शिद्दत जब पैदा करते हैं, वही कबूलियत की घड़ी होती है? असल में किरण, ये हकीकत है कि दुआ की कबूलियत के कुछ औकात हैं। अच्छा। सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस से ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी ज़रूर है। अब तुम तलाश हो, तो इसका मतलब क्या है कि कम से कम जुमे के दिन तुम दुआ मांगते रहो। ठीक है। अच्छा, देखो रात को सोते में आँख खुल जाती है, उस वक्त की जो दुआ है वो बड़ी कबूलियत है कि आपकी आँख खुली और आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दिल की गहराई से, क्योंकि जब आप सो के आँख खुलती है ना, तो सब जो भी चीज़ आपके दिल से निकलती है, चाहे आप अपनी औलाद की हिफाजत मांग लो, आप अपने लिए कुछ मांग लो, कल कोई काम है उसकी बेहतरी मांग लो, वो तुम्हारी दिल की गहराइयों से निकलेगी। और ये तब होगा जब हम थोड़े से अवेयर होंगे कि हमारे अंदर हमारी थॉट्स में चल क्या रहा है। अच्छा, अब आपने जब दुआ मांगी ना, तो आपका सोना इबादत में चला गया।
اور دعا مانگ کے آپ سو گئے وہ بھی عبادت میں ہو گیا. میں نے اسے ایک جملہ کہا تھا کہ غافل دل کے ساتھ نہیں مانگو, کہ وہ رٹی رٹائی چیزیں نہیں مانگو, اثر ہی نہیں ہونا. اللہ رب العزت کو یہ سوچ کے پکارو کہ یہ خالق, یہ مالک, یہ مجھے دینے والا, اسی نے مجھے دینا ہے, اسی نے میری ضرورت پوری کرنی ہے. اور سرکار علیہ السلام کا صدقہ بے شک وہ ضرور اس میں شامل ہونا چاہیے, کیونکہ جس میں درود شریف نہیں ہے, سرکار علیہ السلام کا صدقہ نہیں ہے, تو وہ دعا تو اللہ رب العزت, جب محبوب کے بغیر کوئی چیز گئی تو وہ وہاں تک, تو یہ غلطی ہم اکثر انجانے میں کرتے ہیں ہے نا کہ اگر دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف نہ پڑھا جائے تو ہوا میں معلق رہتی ہے. اس کے قبول کروانا اگر ہے تو آپ کا درود شریف اکثر ہم ایسی بس یہ کرتے ہیں وہ کر ایک, بلکہ میں یہاں مجھے بہت اچھی بات یاد آئی. سرکار علیہ السلام نے مسجد نبوی میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا تھا, تو آپ خاموش ہیں. پھر آپ نے دیکھا ایک دوسرا شخص آیا, اس نے, کیونکہ وہ جو تم نے آدابی دعا کی بات کی تھی اس پہ مجھے یاد آیا کہ اس نے آ کے پہلے الحم شریف پڑھی, اللہ کی تعریف بیان کی, پھر اللہ کی مزید سورہ اخلاص پڑھ کے تعریف بیان کی, پھر درود شریف پڑھ کے دعا مانگی, اللہ کو خوش کیا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اس کی ہر دعا قبول ہو گئی. کیونکہ تو دعا میں درود شریف سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں, کیونکہ آپ جسے پکار رہے ہیں بالکل پہلے اس کا پکاریں. اور اسی طرح ایک شخص مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ایک پودے کے پاس دعا مانگ رہا تھا کہ میرے رب تو اس کا خالق ہے, میرا بھی تیرے سوا کوئی نہیں جیسے اس کا تیرے سوا کوئی نہیں. سرکار علیہ السلام دور بیٹھے تھے, آپ نے اصحاب سے فرمایا اس کو جا کے بولو کہ اس نے جو کچھ مانگا ہے اللہ رب العزت نے دے دیا. کیونکہ جب تم دل سے اس بات کو تسلیم کر لیتے ہو کہ میرے رب کون ہے تیرے علاوہ, وہ نیت ہی میرا کوئی تو نہیں ہے, تو اللہ پوری کرتے ہیں, اللہ دیتے ہیں. اور یقین کامل بہت ضروری, یقین کا بہت بڑا مجھے لگتا ہے کہ عمل دخل ہے کہ آپ کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ رکھیں, کیونکہ وہ دینے والی ذات ہے. ہاں, اکثر آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ دعائیں ماشاءاللہ کرتی ہوں گی, لیکن کبھی آپ نے زندگی میں اپنی دعا کو قبول ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ تو میں نے مانگا تھا رب سے اور دیکھو یہ کیسے پورا ہوا؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. دعا کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب میں فرسٹ ٹائم عمرے پہ گئی تھی تو میں بہت چھوٹی تھی نا, تو کہتے ہیں وہاں پہ جو دعا کرو وہ بچوں کی تو ویسے ہی جلدی قبول ہو جاتی ہے. چھوٹی تھی جی, تو وہ بڑی خواہش تھی کہ مجھے بارش دیکھنی ہے یہاں کی, تو اسی وقت جو دعائیں مانگتی تھی مدینہ شریف میں تو وہ فوراً دعا قبول ہو جاتی تھی. تو یہ میرے لیے بڑا ایک یادگار تھا کہ مدینے میں جا کے یا مکے میں جا کے آپ جو دعا اسی وقت فوراً, مطلب چھوٹے بچوں کی جیسے وشز ہوتی ہیں کہ مجھے کینڈیز چاہیے, تو میری اس طرح کی وشز تھی وہاں پہ, مجھے کینڈیز چاہیے, تو ابھی بھائی لے کر آ رہے ہیں. ابھی بھی ویسے ایسا تو ہے کہ بالکل ہو جاتی ہے, لیکن اس وقت جو تھا نا وہ ایک یہ تھا کہ مطلب اس وقت چاروں طرف کوئی ایسا ماحول نہیں تھا, گرمی تھی آپ کو پتہ ہے جس وقت میں گئی تھی, تو لیکن اس وقت ایک چھوٹا سا ٹکڑا آیا اور وہ برسنے لگا. تو یہ ایک یادگار تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی طرح دعا قبول کر لیتے ہیں. بس آپ سچے دل سے اور ایک بے قرار من سے جب پکارتے ہیں اس رب کو تو وہ دعا ہے نا, اما یجیب المضطر اذا دعا یکشف السوء, کون ہے جو بے قرار دل کی دعا سنتا ہے. اور واقعی اللہ تعالیٰ یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں ہم کہ جیسا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, اور اب یہ تو قبول ہوگی ہماری انشاءاللہ نا, وہ یقین بہت ضروری ہے. ایک بریک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, لیکن بریک میں جانے سے پہلے شیف حمزہ سے پوچھنا بہت ضروری ہے کہ کہاں تک پہنچی ہے کوکنگ. اچھا, میں فولڈنگ بریک کے بعد آرام سے دکھا دوں گا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. قیمہ تیار ہو گیا, قیمہ آلموسٹ تیار ہونے والا, اور ڈینڈا نوڈلز تو بہت کوئک بنے گا. اچھا, یہ ڈینڈا نوڈلز, ہاں کورین اسٹائل ڈینڈا. آج میں فرسٹ ٹائم یہ نام سن رہی ہوں, اور آپ نے سب سے پوچھا یہ تو اتنا کامن ہے. ہاں, کیونکہ کورین نوڈلز سب کھا رہے ہیں آج کل. پوچھ لیں, آئی بلیو نہیں کھایا تو چلیں آج ٹرائی کر لیں. یہ نام نیا ہے ہمارے لیے. ہاں, نام نیا ہوگا, وہ کورین نوڈلز سے مشہور ہے نا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, ہم لوگ ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایمان ہے رمضان, ہمارے ساتھ ہی رہیے. تراس اجزا: بیف کا قیمہ 500 گرام، ادرک لہسن کا پیسٹ 2 چائے کے چمچے، پسا دھنیا 1 چائے کا چمچہ، پسی لال مرچ 1 چائے کا چمچہ، گرم مسالہ آدھا چائے کا چمچہ، کٹی پیاز آدھی، تیل 2 کھانے کے چمچے، ہری مرچ 1 عدد، ہرا دھنیا حسب ضرورت۔ بیٹر کے لیے اجزا:
मैदा 2 कप, पानी 1 कप, अंडा 1 अदद, पिसा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, जर्दे का रंग 1 चुटकी। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर हम आपको खुशामदीद करते हैं ईमान है रमज़ान में। आपको बताती चलूँ कि आप लोगों के पास जीतने का मौका है, बेशुमार वाउचर्स हैं हमारे पास, ख़ास तौर से कराची वाले तैयार हो जाइए। मोवेनपिक होटल के वाउचर्स हैं, पोर्ट ग्रैंड कराची के वाउचर्स हैं, बीच लग्जरी होटल कराची के वाउचर्स हैं, राजधानी रेस्टोरेंट कराची के वाउचर्स हैं, और अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो बेस्ट वेस्टर्न प्रीमियर के भी वाउचर्स हैं जो हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास मेकअप के मुसरत मिसबा के उनके वाउचर्स हैं जो दे रहे हैं, प्लस वाउच 365 जो हम सबकी फेवरेट एक किताब होती है जिसमें जो सारे कूपन्स होते हैं वो बाय 1 गेट 1 फ्री के होते हैं। फ्रेंड्स के साथ प्लान करें, फैमिली के साथ प्लान करें, ख़ुद भी चले जाएं, अकेले भी, तो बहुत ही यूज़फुल है। रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, सैलून्स हैं, जिम्स हैं, शादी आगे हो रही है तो फोटोग्राफी के बहुत सारे कूपन्स हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा क्रेप्स, हाँ जी। बंगाली क्रेप्स इसका नाम क्या है? पंतरास। पंतरास, ठीक है। सो बेसिकली इसका फोल्डिंग का थोड़ा ट्रिक है, एक तरफ से इसको पकाया है, ये दूसरी हमारा तरफ से अंडा कैमरा ले रहा है इसको, यूजुअली वो ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपने इसके बीच में स्टफिंग करनी है। आपने इसकी सेका था सिर्फ एक तरफ से। अच्छा, सिर्फ एक तरफ से सेका था हमने, ठीक है। और डो बहुत पतला होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको ज़रा सा इधर कर दूं ताकि वो कैमरा शॉट। ठीक है, अब ये स्टफिंग कर ली। हाँ, हैंडल कर पाएंगे। एक रोल एक तरफ ये किया, ठीक है। उसके बाद यही वाला मिक्सचर लेके हाँ, अपने नॉर्मल रोल की तरह नहीं इसको बना सकते? नहीं, वरना ही खुल जाएगी। स्प्रिंग रोल्स बनाते हैं ना इतना। अच्छा। लेकिन वो इसकी फोल्ड खुल जाती है फिर। अच्छा। आपने फिर एक रोल किया, फिर देन 1 ओके ओके, ठीक है। 2 एंड ये 3rd। अब पक्का सील हो गया वो। ये सील हो गया। और आपने लगाया क्या इसमें? इस पे यही वाला बैटर मैंने लगाया। अच्छा, कोई अलग से मैदे के लेप शेप नहीं? टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी तेल गरम कर लिया, और ये घर से मैं रात को जाके सहरी के बाद बना लिया, तो बड़ी इसको फ्राई मेहनत कर कर रहे हैं लेता आप ईमान है रमज़ान के लिए। और जनाब, ये जो हम डीप फ्राई कर रहे हैं इसको भी हमने नेचुरल ऑयल इस्तेमाल किया है ताकि हम हेल्दी खाना खा सकें। डीप फ्राई तो कर रहे हैं बट ये कि प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स से फ्री है ये नेचुरल ऑयल, तो इनकी फ्राइंग आप कर रहे हैं। इसके अलावा साथ ही साथ मैं डैंडन नूडल्स की सॉस बना लेता हूँ। आज दादी के बर्तन फिर से आए हैं मुझे लग रहा है। मेरे तो खानदान वालों ने पूछना शुरू कर दिया कहाँ छुपे हुए थे इतने टाइम से। हाँ ना, और क्या अच्छा है, दादी की याद भी ताज़ा हो रही है। ठीक है, Okay. आप सॉस अभी स्टार्ट कर रहे हैं या मैं बाद में आऊँ आपके पास? आई गेस इंस्टेंट है, जल्दी से कर लेते हैं। अच्छा, या तो रुक जाए ना। चलें ठीक है, आपका मैं वेट कर रहा हूँ, फिर और जल्दी क्या, आइएगा। क्योंकि हमारा आज का टॉपिक भी इतना उस तरह का है कि हमें बहुत कुछ अपने आप में जो हमारी गलतियाँ हैं, इवन कि सिंपल एक दुआ के हवाले से भी, तो वो भी हम दुरुस्त करें। अब इस्तग़फ़ार के ऊपर थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे क्योंकि ये हमारा रमज़ान का दूसरा अशरा है, वो भी ख़त्म हो रहा है, अशरा मग़फ़िरत, ये हमारा टॉपिक भी है। तो अब जैसे दुआ के आदाब हैं और फ़जीलत है, इस्तग़फ़ार के क्या आदाब हैं और क्यों इस्तग़फ़ार ज़रूरी है, और हर बार हम कर सकते हैं, इससे अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं? देखिए, इस्तग़फ़ार करना, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना, तौबा तलब करना, और उसका एक तरीक़ा इस्तग़फ़ार है। इस्तग़फ़ार खुद इट्सेल्फ एक दुआ है, दुआ ही है। तो जब हम अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करते हैं तो उसका मतलब है कि हम अपनी गुनाहों पे शर्मिंदा हैं, नादिम हैं, और अपनी बख्शिश चाहते हैं, अपनी मग़फ़िरत चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ही बख्शने वाला कारसाज़ है, इसलिए हम इस्तग़फ़ार करते हैं। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला की तो रहमत और उसकी रहमतें बेतहाशा हैं, बेपाया हैं। अल्लाह का हमें नूर चाहिए होता है, अल्लाह की खुशनुदी चाहिए होती है, हमें ज़िंदगी की और आखिरत की भलाइयाँ चाहिए होती हैं, आफ़ियत चाहिए होती है। तो जब हम गुनाह कोई करते हैं तो इन तमाम चीज़ों का रास्ता बंद हो जाता है। इस्तग़फ़ार करने से उनके रास्ते खुल जाते हैं, अल्लाह की रहमत जोश में आती है जब एक बंदा गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला के सामने अपनी तौबा करता है कि मैं नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ, मुझसे गुनाह सरजद हो गया, या अल्लाह तू ही माफ़ करवाने वाला है, मुझे माफ़ कर दे। तो फिर उस तरह से उसके ऊपर रहमतें नाजिल होती हैं, उसके बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस्तग़फ़ार ज़रूर करना चाहिए। आपसे एक सवाल ये करूँगी, अव्वल तो ये कि काफ़ी सारे लोग होते हैं ऐसे जो ये मानते ही नहीं कि हमने कोई गलती की भी है या कोई गुनाह किया भी है, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। अगर ये सोच होगी तो फिर वो वाला इंसान तो वैसे ही तौबा और इस्तग़फ़ार की तरफ नहीं जाएगा। तो ये शायद अनकॉन्शियसली भी एक तरह से गुनाह है जो हम कर रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कि हम बिल्कुल सही हैं। बिल्कुल किरण, क्योंकि देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोग फरमाते हैं कि आप दिन में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार किया करते थे।
कुछ लोग कहते हैं कि आप दिन में 200 मरतबा इस्तग़फ़ार किया करते थे। असहाब ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो मासूम हैं, आपसे ज़्यादा पाक व साफ कर रहे अर्ज़ पे ना कोई था ना है, आप इस्तग़फ़ार क्यों फरमाते हैं? तो फरमाया, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो इससे ये बात साबित होती है कि इस्तग़फ़ार करना शुक्र इलाही भी है। फिर जो औलिया अल्लाह इस्तग़फ़ार फरमाते थे तो वो अपने हर आने वाले दिन को बेहतर बनाने के लिए इस्तग़फ़ार फरमाते ज़रूरी थे है कि पिछले दिन से हमारा आने वाला दिन बेहतर हो जाए। तो इसका मतलब है कि इस्तग़फ़ार करने से इंसान की ज़िंदगी में बेहतरी आती है। हम जो आम लोग हैं वो जब इस्तग़फ़ार करते हैं तो हम अपने गुनाहों से तौबा के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। मैं, आप, दुनिया में कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मुझसे गुनाह नहीं होता। हम कुछ गुनाह जाने में करते हैं, कुछ अनजाने में करते हैं। तो हमें इस्तग़फ़ार मुस्तक़िल पढ़नी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह की माफ़ी मिलती रहे। माफ़ी मिलेगी तो रहमत मिलेगी, रहमत मिलेगी तो ज़िंदगी में खुशी आएगी, नेकी आएगी, सुकून आएगा। और अल्लाह को इस्तग़फ़ार करने वाले लोग इतने पसंद हैं, माफ़ी मांगने वाले लोग इतने पसंद हैं। अल्लाह कहते हैं, अगर मेरे किसी बंदे के गुनाह ज़मीन से आसमान जितने भी हों तो मेरे लिए वो इतने हैं कि मेरी रहमत का एक बेकना समंदर है और मेरे बंदे के गुनाह चिड़िया की चोंच में फंसा हुआ एक छोटा सा तिनका है। देखें तो मेरा रब की रहमत, क्योंकि मेरा रब खुद कहता है कलाम पाक में कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पे हावी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्तग़फ़ार करने वाले को, माफ़ी करने वाले को बहुत पसंद करते हैं। बस इस बात को कहकर कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा की कसम अगर तुम गुनाह करना छोड़ दो और माफ़ी मांग, ज़ाहिर गुनाह नहीं करोगे तो माफ़ी नहीं मांगोगे, तो अल्लाह तुमको ख़त्म करके तुम्हारी जगह ऐसी कौम पैदा करेगा कि जो गुनाह करेंगे, माफ़ी मांगेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको माफ़ फरमाएगा। बस जी, माफ़ी तो मांगे और माफ़ कर भी दें अगर किसी के लिए दिल में। इस्तग़फ़ार करने वाले के गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे ख़िज़ां के मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं। एक कॉलर है शाजिया, वो भी आज टॉपिक के हवाले से हमसे बात करना चाह रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं किरण? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल, बहुत प्यारा टॉपिक लेकर आई हैं आज फिर आप, हमेशा की तरह। और मैं तो ये कहूँगी दुआ बदल देती है तकदीर। जी आपकी आवाज़ कट रही है। दुआ बदल देती है तकदीर को। बेशक बेशक, बिल्कुल, बस दुआ है, दुआ एक ऐसी चीज़ है कि बस आप मांगते रहें और करते रहें, वो रद्द नहीं होती, वो ज़रूर कबूल होती है और किसी न किसी सूरत में आपको मिलती ज़रूर है। बेशक। आपने वैसे इसका प्रैक्टिकली एग्जाम्पल कभी एक्सपीरियंस किया है खुद? हम देखें ये बातें तो करते हैं, बिल्कुल किया है, हर कदम पे किया है, हर लम्हे किया है, हर पल किया है, और उस हर वक्त पल किया है। और उस वक्त आपने कभी नोटिस किया, गौर किया कि उस वक्त आपकी शिद्दत कितनी होगी दिल में जब आपने कोई ऐसी दुआ मांगी और पूरी शिद्दत, ये शिद्दत ही है जो हमारी तकदीरों को बदलती है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये शिद्दत जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना, उतनी वो जो दुआ है। आप आजिज़ी, इनकिसारी, आप मोहताज बनकर मांगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे झुकें, आजिज़ी के साथ करें आप दुआ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर सुनते हैं। कभी भी आपकी दुआ रद्द नहीं होती। हमें मांगना नहीं आता, असल में मांगने का तरीका नहीं, तो मांगने का तरीका जो है ना, आता तारीफ कर ले अल्लाह ताला की। और जी बिल्कुल, अल्लाह की हम तो सना करें, अल्लाह की तारीफ करें, अल्लाह ताला खुश होता है, अल्लाह ताला मांगने वालों को पसंद करता है। लेकिन अल्लाह के आगे रोएं, अल्लाह से गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से करें, बेशक वो सुनता है। और इस्तग़फ़ार कसरत से करें, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करता है। अच्छा ठीक है जी शाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया और हिस्सा लिया। आपका नाम इंशाल्लाह हम ज़रूर डाल देंगे। अच्छा जी, एक ब्रेक आ गई है। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल मैं आप दोनों के लिए छोड़े जाती हूँ। मुझे बताइएगा कि दुआ और ये इस्तग़फ़ार, इसके लिए क्या क्वांटिटी मैटर करती है या क्वालिटी मैटर करती है? तो हम कहते हैं ना बार बार पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो, तो क्या वो मैटर करेगा, नहीं करेगा, या सिर्फ क्वालिटी मैटर करेगी? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। हम ब्रेक में जाने से पहले हमजा से भी ज़रा देख लें ये बंगाली रोल्स नाम नहीं मुझे याद हो रहा, तो इसीलिए ये रेडी हो गए, बिल्कुल कुक्ड हो गए हैं। और अब मैं इसको डिश आउट करूँगा और फिर आते हैं ब्रेक के बाद, तो फिर हम डैंडे नूडल्स बनाएंगे। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
अच्छा जी, खुशामदीद। आप देख रहे हैं ईमान है रमज़ान। यहाँ पर हमज़ा जो है वो इंतज़ार कर रहे थे कि हम जो चिकन बना रहे हैं उसकी सॉस आपने तैयार करनी है, और ये नूडल्स जो आपने तैयार किए हैं हमने कोलसॉन चाइनीज़ एग नूडल्स हैं, कौन से हैं? हाँ, चाइनीज़ एग नूडल्स हैं, चाइनीज़ एग नूडल्स हैं, जिसको ठीक है। मैंने अच्छा, बॉईल कर लिया, अब इसकी हम सॉस बना रहे हैं। अब जो है ना वो स्पाइसी वाली, अब जब चीज़ें नोट कीजिएगा, ये चिली ऑयल है। अच्छा, ये पहले बता दें, आपने नेचुरल ऑयल लिया, फिर चिकन का कीमा है, चिकन का कीमा थोड़ा सा डाला, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें गार्लिक डाल रहा हूँ, सही है, ठीक है, सौते कर लिया। अब मैं इसमें मसालेदार चीज़ें डालूंगा जो आपको नोट करनी है। ठीक है। सबसे पहले चिली ऑयल है, यानी कि साबित लाल मिर्च होती है, उसको तेल में पकाया, सही है, और उसका ऑयल ब्लेंड कर लिया, ठीक है। और ये बना बनाया भी मिलता है, बट महंगा होता है, महंगा मिलता है, ठीक है, ठीक है। साथ ही साथ सिराचा सॉस, ओके, जो कि बहुत एक्सट्रीमली स्पाइसी होती है। हाँ, फिर इसके बाद एक टॉम यम पेस्ट आता है, ये भी बहुत स्पाइसी होता है। हाँ जी, थाई पेस्ट टॉम यम पेस्ट, ये डाला, ठीक है। साथ ही साथ सोया सॉस डाला। ये थोड़ा सा थाई कोरियन फ्लेवर, ये हाँ, थाई है, थाई है थोड़ा, थाई कोरियन मिक्स ही है, आप Mix कह सकते हैं। है, हाँ, ठीक है। ठीक है, ये सॉस हो गई। थोड़ा सा चूल्हा मैं कम करूँ। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ पीनट बटर, ओह अच्छा, क्योंकि आपको पता है थाई नटी सा फ्लेवर ऐड करेगा इसके सही है। अंदर, और इसकी जो स्पाइसी की मेलोनेस थोड़ा लेकर आएगा, थोड़ा ठीक है, मेल्ट डाउन करेगा उसको, ठीक है। ये हुआ, और आपने सेसमी सीड्स भी रखे हैं, वो भी जाएंगे इसमें? हाँ, वो मैं अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, इतने मज़े मज़े के इसमें पेस्ट डाले हैं, बहुत ही थोड़ा सा चिली सॉस को थिक करने के लिए, अच्छा, क्योंकि नूडल्स की कंसिस्टेंसी ज़्यादा है हमारी। ठीक, नूडल्स भी इसी में ही ऐड कर देंगे इसी आप? में ऐड कर और दूंगा, मिक्स सारा और अच्छे मिक्स से? कर लूँगा, ठीक है, बस सिर्फ टॉस्ट रहता होगा। बिल्कुल। अच्छा जी, एक हमारी सिर्फ लास्ट की एक रेसिपी है जो कि बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सी है, ये आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा, वुड एप्पल। हाँ, एप्पल वुड वुड एप्पल, वुड एप्पल है, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। ये इसका पूरा इन्होंने स्कूप कर लिया, गूदा निकाल के रखा है, इसके साथ ये कुछ बनाएंगे ऑलपर्स के साथ, कुछ स्मूदी बनाएंगे, स्मूदी। स्मूदी के साथ ऑलपर्स मिल्क के साथ। बेसिकली ये एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है। आप कहाँ जंगलात से लेकर आए हैं ये वुड एप्पल? ये एम्प्रेस मार्केट है, जो कि बहुत करीब इधर से आराम से मिल जाता है। अच्छा। बट बात सारी के लोगों को इन चीज़ों को दरियाफ्त करने के लिए उनके बारे में पता नहीं होता, तो मैं इसके बारे में बताऊँ। ये फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। इसको कैंसर पेशेंट से लेके गट हेल्थ के लिए, सबके लिए बहुत रिकमेंड किया जाता है। 36 बीमारियों का इलाज इसमें कहते हैं कि है, आयुर्वेदिया के हिसाब से सारा कुछ है। और देखिए, मैं इसको फर्स्ट टाइम देख रही हूँ और सुन रही हूँ इसके बारे में, और मुझे नहीं पता। ज़बरदस्त जी, इसकी भी ड्रिंक हम सीखेंगे ठहर के। आ जाते हैं, मैं एक सवाल छोड़ के गई थी, एक तो ये था कि क्वांटिटी और क्वालिटी मैटर करती है, चाहे दुआ हो चाहे इस्तग़फ़ार हो, क्या कहेंगी आप डॉक्टर यास्मीन? देखिए, दुआ को तो हर वक्त यही अल्लाह ताला ने कहा है कि मांगते रहो, जितना आप दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला से तो वो आपको उतना ही नवाजेंगे। लेकिन फिर दुआ के आदाब भी हमें सिखाते हैं कि भाई ये इतनी शिद्दत से मांगो, इस तरीके से नहीं, वैसे भी मांग सकते हैं। अगर आप प्रॉपरली उस तरह बैठ के मांगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चलते फिरते उठते बैठते भी मांगे तो कोई रद्द नहीं होती। कम से कम कुछ नेगेटिव तो नहीं चला रहे ना, दुआ ही चला रहे हैं। एक्चुअली देखो, दुआ जो है ना, ये ज़बान पे एक जिक्र रहना चाहिए। सही है, ठीक है, ये ज़बान जो है ना, ये जिक्र इलाही से तर रहनी चाहिए। कि सरकार अलैहिस्सलाम जब मिराज पे गए थे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मिले थे तो उन्होंने कहा था कि आप अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहिएगा, और उन्हें कहिएगा कि जन्नत की मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, यहाँ जो बीज डालोगे तो फिर जब आप यहाँ आएंगे तो खेत पाएंगे। तो उन्होंने चंद अल्फाज बताए थे, जो हमारा तीसरा कलमा है कि सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो ये वो जिक्र है जो ज़बान पे हर वक्त रहना चाहिए, कि जिसमें अल्लाह की हम्दो सना है। अब जब आप अल्लाह की तारीफ़ बयान कर रहे हैं तो वो इतना रहीम व करीम है कि वो आपकी दुआ सुनता है, वो आपकी माफ़ी सुनता है। तो इस्तग़फ़ार हो या दुआ हो, ये दोनों चीज़ें इंसान को करते रहना चाहिए। जब आप एहतमाम से बैठते हो, देखो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, फीलिंग्स लेकिन फील करके हमारी इतने बिजी रूटीन में ना हमें वो एहतमाम का हर वक्त टाइम नहीं मिलता। तो अपने रब से इस कनेक्शन को, ये जो हम वाईफाई का कनेक्शन है ना, हर जगह तलाश करते फिरते हैं, वहाँ से जहाँ भी जाते हैं कि हमें इस वाईफाई का कनेक्शन मिल जाए, अपने रब का वो वाईफाई का कनेक्शन अपने से ना टूटने दें। अच्छा, एक सवाल और मेरे जहन में आया, क्योंकि हमारा टॉपिक है दुआ और इस्तग़फ़ार। अब ज़रूरी है कि हम इस्तग़फ़ार के लिए अलग से बैठें, अलग से नियत करें, या बाज़ दफ़ा हम लोग दुआ में ही इतनी तौबा कर रहे होते हैं और माफ़ी मांग रहे होते हैं, तो वो एक ही चीज़ होगी? नहीं, देखो वैसे तो इस्तग़फ़ार भी दुआ है, लेकिन एक चीज़ इसलिए नहीं हो सकती कि दुआ में
ہم بہت ساری چیزیں ایسی مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہماری دنیاوی ضرورتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور استغفار میں پیورلی ہم اپنے سول کی صفائی مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں پہ شرمندگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے معافی مل جاتی ہے تو رحمت بھی مل جاتی ہے. اور کرن آپ کے ہی پروگرام کے توسط سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ ہم بہت جلد باز ہو گئے نا بہت. تو آپ کو پتہ ہے اپنا ارم آپا، لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے، ایک شکایت کہہ لیجیے، ایک گلہ ہے کہ ہم لوگ تو دعا کر کر کے تھک گئے، ہماری تو دعا ہی نہیں قبول. یہی بات میں کرنا چاہ رہی تھی. تو دیکھیں دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی بھی رد نہیں ہوتی. یا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دعا فوراً قبول ہوئی، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دعا رنگ لے آئی اور ہم اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میرے رب کو پتہ ہے کہ یہ چیز میرے بندے کے لیے اتنی اچھی نہیں ہے، تو وہ کبھی ایسا کرتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی تاخیر کر دیتا ہے، یا پھر اس کے بدلے ہمیں کوئی اور چیز عطا کر دیتا ہے جو اس سے اچھی ہوتی ہے مگر ہماری سمجھ نہیں ہوتی. تیسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں کسی صورت میں نہیں ملتی، نہ فوراً ملتی ہے، نہ بعد میں ملتی ہے، نہ اس کے بدلے میں کچھ ملتا ہے. صحیح ہے. قیامت کے دن جب نامہ اعمال ہمارے کم ہوں گے نیکیوں کے، تو وہ تمام دعائیں اٹھ کے اس نامہ اعمال میں آئیں گی، اور بندہ کہے گا یا میرے رب یہ نیکیاں کہاں سے آئیں. میرے رب کہے گا یہ وہ تمام دعائیں ہیں جو تم مجھ سے کرتے تھے. تو اس وقت انسان خواہش کرے گا کہ کاش میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اور سب آج اس میزان عدل میں آ گئی ہوتی. تو اس لیے دعا ہر وقت مانگا کرے کہ یہاں نہیں تو وہاں آپ کی نیکیاں بن کے ضرور آپ کو. اچھا، اور مانگنا بھی ضروری ہے. مطلب اگر ہم کچھ نہ مانگے، اکثر لوگ میں نے یہ بہت سنا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے، سب کچھ ہے، ہمیں تو کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم شکر گزاری میں ہی رہیں گے. تو کیا وہ بھی صحیح ہے اس طرح کا رکھنا؟ نہیں، تو شکر گزاری خود بھی تو اللہ کے آگے سبمیشن ہی ہے نا، کہ آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے کہا نا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر جتنا شکر ادا کرو گے میں اس میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. تو شکر کرنے سے تو آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. شکر تو کرنا ہی ہے، مانگے ضرور مانگے، اللہ دینے والا ہے. اور جب یہ آپ نے ایک بات کی تھی کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، تو دو چار چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے انہوں نے کہا کہ جلد بازی ہم کو اتنی رہتی ہے نا کہ فوراً قبول ہو جائے. دوسرا یہ کہ آپ جب دعا مانگے تو کسی سے خطا رحمی اور ایسی دعا نہ مانگے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو، کسی کے لیے بد دعا والے الفاظ نہ استعمال کریں. پھر اب جب تک دوسری ایک دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ اللہ سے مانگتے رہیں. اور تیسرا یہ کہ رزق حلال کا اہتمام کریں. اگر آپ کے رزق میں حرام کا مال آ جائے گا کسی بھی طریقے سے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. تجاوز، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حد سے زیادہ تجاوز نہ کریں. مانگ رہے ہیں تو بالکل ہی پیچھے پڑ گئے اور زور زور سے چلا رہے ہیں، یہ کریں کیوں نہیں مل رہا مجھے، ایسا کیوں، یہ بھی نہ کریں. تو کچھ دائرے ہیں جن میں رہ کے فالو کرنا چاہیے. اور اکثر ہم انجانے میں یہ غلطی کرتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے جن کے لیے ہم دعا گو رہتے ہیں، جن کے لیے ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھ، ان کو سکون دے اور ان کو کامیابی دے، اور پھر وہی اپنوں سے جب ہم ناراض ہو جاتے ہیں، گلا شکوہ کرتے ہیں، کوئی اوپر نیچے بات ہو جاتی ہے، دل میں دکھن محسوس کرتے ہیں ان کی وجہ سے، ہم انہی اپنوں کے لیے بدگوئی شروع کر دیتے ہیں، بدگمانی شروع کر دیتے ہیں. ایک طرف ہم دعا کر رہے ہیں، دوسری طرف جب ہم ہرٹ ہوتے ہیں تو ہماری پوری نیگیٹو انرجی ایکٹیو ہو جاتی ہے ان کے لیے. تو میرا خیال سے یہ غلطی ہمیں احساس اس لیے کہ انسان جو ہے نا وہ بہت جلدی نا امید ہو جاتا ہے. اور اللہ رب العزت کی ذات سے تو نا امید ہونا ہی نہیں چاہیے. بے شک انسان سے بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے. آپ ساری زندگی کسی کے ساتھ نیکیاں کرتے رہو، ذرا سا آپ کسی وجہ سے رکے، سامنے والا شخص آپ کے لیے بدگمانی شروع کر دے گا. تو سب سے اچھی بات یہ کہ اپنے آپ کو ساری زندگی سب سے کمتر جانو، ڈاؤن ٹو ارتھ رہو، اور یہ سوچو کہ سامنے والا شخص مجھ سے بہتر ہے. ایک تو کبھی شکایت نہیں ہوگی. اور میں ہمیشہ ایسے موقع پہ وہ شعر ضرور پڑھتی ہوں کہ ضائع ہونے سے بچا لے میرے معبود مجھے، ضائع ہونے سے بچا لے میرے معبود مجھے، ایسا نہ ہو وقت مجھے کھیل تماشا کرتے. یہ جو حالت ہے میری میں نے بنائی ہے مگر، یہ جو حالت ہے میری میں نے بنائی ہے مگر، جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے. تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کیا کرے تو زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا. اب اگر کوئی آپ کا اپنا آپ کو ہرٹ کرے تو پلیز اس لمحے کو یاد کر دیں کہ جب آپ نماز میں بیٹھ کے یا ویسے ہی دل سے ان اپنوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ اپنے آپ کو روک لیں گے اور خود بھی نیگیٹو ہونے سے بچ جائیں گے. خواہ میں آپ گناہ کما لیں گے اور پھر وہ دعا جو ہے قبول نہیں ہونی. بٹ اینی ویز بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے. دعا اور استغفار کے بارے میں ہم نے آج بات چیت کی ہے اور تھینک یو سو مچ ونس اگین. انشاءاللہ آگے بھی ہوگا، رمضان کے بعد بھی ہوگا تو ہم اس طرح کے ٹاپک
टॉपिक्स लेकर आएँ, और आज तो मोटिवेशनल स्पीकर्स भरे हुए हैं हमारे शो पर, क्योंकि इनके जाने के बाद हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ होंगी, एक और मेहमान होंगी जिनसे हम कुछ रमज़ान के हवाले से, कुछ अपने अंदर की सफाई के हवाले से वो भी बातचीत करेंगे। तो आप मुझे ज़रा आपकी तरफ आ जाती हूँ ब्रेक में जाने से पहले, क्या ख्याल है? ड्रिंक सीख लें हम आपसे, स्मूदी, इतना टाइम है, ये तो मुझे इशारा मिलेगा नहीं, ब्रेक पे जाना है और फिर ब्रेक से वापस आएंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर इंशाल्लाह ईमान है रमज़ान की इस ट्रांसमिशन को कंटिन्यू करेंगे। रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। बहुत सारे वाउचर्स तो हम आपको दे रहे हैं मुख्तलिफ़ होटल्स और रेस्टोरेंट्स के, साथ में हम आपको मुसर्रत मिसबा के मेकअप के भी वाउचर्स हैं जो आपको देना चाहते हैं। उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। इसके अलावा कराची में जो लोग रहते हैं और आज अल सज्जाद जाना चाहते हैं, 2 दरिया, वहाँ पर आज कवाली नाइट हो रही है, वहाँ जाइए, डिनर कीजिए, एंजॉय कीजिए, फैमिली के साथ जाइए और खुश रहिए। बस खुशी तो रहना है, यही तो हमारा काम है और इसी के लिए तो सारी मेहनत हम करते रहते हैं। खैर एनीवेज़, आ जाते हैं हमारी आज की एक और मेहमान से, हम आपकी मुलाकात करवाना चाहेंगे। ये माइंड साइंसेस, स्पिरिचुअल साइंसेस की बहुत अच्छी स्टडी रखती हैं, काउंसलर भी हैं और बाकायदा FM 96 पर ये अपना शो करती हैं। और इनको नहीं पता था कि आई वॉज़ वन ऑफ अ सीक्रेट एडमायरर। मैं इनका शो बड़े शौक़ से और दिलचस्पी से सुनती हूँ, जब भी गाड़ी में जाती हूँ लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे इनके टाइमिंग्स पता हैं शो के, मॉर्निंग में जब मैं निकलती हूँ। बट इनका जो बयान करने का अंदाज़ तो है ही अच्छा, बातें बहुत काम की बताती हैं। एंड आई एम श्योर जो इनके तमाम लिसनर्स हैं उनको काफ़ी फ़ायदा भी पहुँचा होगा इनकी बातों से। मेरी बड़ी चाहत थी और ख्वाहिश थी कि मेरी इनसे मुलाकात हो, ये मेरे शो का हिस्सा बने, ताकि इनके लिसनर्स की तरह मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनका भी फ़ायदा हो सके। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अनम अली से। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ किरण, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी, बहुत खुश, हैप्पी। और आपको देख के मुझे लगता है आपके सेट के सारे लोग भी बड़े खुश और हैप्पी रहते होंगे। ये लोग तो सारे, ये लोग मुझे एनर्जी देते हैं सो मच। आपने मुझे, जितनी मैं खुश रहती हूँ, मुझे उससे आज मैं डबल खुश होकर जाऊंगी, बिकॉज़ मुझे वाकई नहीं पता था कि आप मेरे प्रोग्राम को इतने शौक से सुनती हैं। मैं सुनती हूँ बिल्कुल, क्योंकि बातें ऐसी होती हैं। अच्छा अनम, आज आपको बुलाया है हमने इसलिए, तो मैं चाहूँगी कि मैं सवाल कम करूँगी, क्योंकि जब आप बोलती हैं तो फिर नॉन स्टॉप अच्छा लगता है सुनने में भी। एक तो ये कि रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में हम ये जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं ना, इनसे तो अपने आप को रोक लेते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिन पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। Exactly. हमारी थॉट्स पे कोई कंट्रोल नहीं है। ये थॉट्स की भी कोई क्लिनजिंग होती है या हम कैसे अपने आप को अंदर की हम अपनी सफाई कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं? अच्छा किरण, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। मुझे लगता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। एक चीज़ मैं देख रही हूँ, हर साल हम रमज़ान आता है एंड एवरी टाइम हम रमज़ान को एक ही तरह से गुजारते हैं, नो सेम रिचुअल्स हैं एंड सारी चीज़ें सेम करते हैं, तो मैं उस तरफ इतना फोकस नहीं करूँगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि एवरी टाइम जब रमज़ान आते हैं तो हमारा फोकस हमारी इबादत, हमारी इफ्तारी और बहुत सारी चीज़ों पे होता है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह ने मुझे और आपको अगर इस बार भी ये महीना दे दिया, तो एक छोटी सी चीज़ है कि अगर हम अंडरस्टैंड करें कि हम कितने माइंडफुल हैं, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट माइंड साइंसेस, हम कहते हैं आपको हर चीज़ को बहुत ध्यान से, बहुत माइंडफुल होकर रखना है, अवेयर होकर रखना है, ठीक है ना। थॉट्स भी उसी में आ जाते हैं। हमारा पीस को कैसे हम इस रमज़ान में बेहतर कर सकते हैं वो भी उसमें आ जाता है। अब मैं देख रही थी हमजा बहुत ही मोहब्बत से और प्यार से खाना बना रहे थे, तो मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि नो खाने में भी पीस है। हम सिर्फ एक ही चीज़ में क्यों पीस देख रहे हैं। एंड आई एक्चुअली मैं देख भी रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि लोगों को, आप देखें कि लोग जब अपने कामों के साथ रमज़ान में रोज़े में भी रहते हुए सब चीज़ें कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जितना पीस आपके अंदर होगा उतना आप खाना पका रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली बाहर आएगा। वो एनर्जी है। रमज़ान का महीना मुझे और आपको एक ऐसा बोनस महीना मिलता है जिसमें ना सिर्फ ये कि मैं और आप उसको बेहतर कर सकते हैं बाकी 11 महीनों में, ताकि वो हम उसको लेके चलें। प्लस एक चीज़ है, अभी आपके गेस्ट को भी मैं सुन रही थी, रमज़ान का बेसिक मकसद क्या है किरण? मैं और आप, हम सब यहाँ हैं, तक़वा। सही है, ठीक है। तक़वा सिर्फ रिलीजन के हिसाब से नहीं है, इवन इन साइंस, इवन इन माइंड साइंसेस, इवन इन साइकोलॉजी, हर इंसान को मौका मिलता है कि वो इस रमज़ान के इस महीने में, इन 30 दिनों में अपने तक़वा को
एलिवेट कर ले, अगर फॉर एग्जांपल, और ज़्यादातर हम में से लोगों का तकवा बिल्कुल ज़ीरो पे होता है, ठीक है। तकवा है क्या असल तकवा में? है क्या तो असल में, एग्जैक्टली वही आपकी बात पे आ रही हूँ कि तकवा ही मेन चीज़ है, ठीक है ना। अच्छा, तकवा को अगर हम देखेंगे तो हम जैसे लोग जो कि शायद मुझे लगता है दीन से बिल्कुल हमें कोई समझ नहीं है, तो हम इसको शायद सिर्फ एक साइड पे देखेंगे, सही है ना। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि मैं हर चीज़ में माइंडफुल होती जाऊं, रोज़ों में मुझे और आपको सिर्फ हलाल और हराम चीज़ों से मनादी नहीं है, सही है। रमज़ान में जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम बहुत सारे वो काम भी नहीं कर रहे होते किरण जो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। इसके अलावा रमज़ान में हम सबकी कोशिश होती है थोड़ी बहुत कि गुस्सा ना करें, किसी को गाली ना दें, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएं, गुस्सा ना करें, बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं होता है। देन अगेन पीपल यूज्ड टू से दिस कि ओ मुझसे तो ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, है ना, मैं तो ये बात के बगैर रह नहीं सकता, सही है, फ़ौरन से अच्छा मेरा फोकस नहीं है, मैं अपने थॉट्स के ऊपर कैसे कंट्रोल करूं। अब आप ये मैजिक देखें कि अल्लाह को मालूम है कि उसने मुझे और आपको, हम सबको बनाया है, उसको पता है कि बंदे के अंदर जो तकवा का जो एक एलिमेंट है वो बिल्कुल ज़ीरो पे आता है जब भी रमज़ान दिए मुझे और आपको, सही है। वो सारे लोग जो आम दिनों में हमारे पास भी जब आते हैं, हम कहते हैं हमसे ये नहीं हो रहा, वो सारे लोग रमज़ान में थोड़ा बहुत सब कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि इट्स एक्चुअली विद इन अस, सही है, ठीक है ना। कर सकते थोड़ा सा मैं माइंडफुल हो जाऊं कि मैं इस रमज़ान में अफ्तार कैसा कर रही हूँ, मैंने इस रमज़ान में पूरा दिन कैसे गुजारा, इस रमज़ान में मुझे वही तो सारे थॉट्स आए जो मुझे रमज़ान के अलावा भी आते हैं और आगे भी आएंगे। अच्छा, माइंडफुल बेसिकली जो आप कह रही हो कि अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, सोच क्या है, ठीक है। मैंने खाना खाया, आम दिनों में भी हम और आप खाना खाते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि जब अफ्तार होती है तो एक अंदर से मेरी और आपकी एक अलग फीलिंग है, राइट। सो अगर मैं सिर्फ यही अंडरस्टैंड कर लूँ कि इस पूरे 30 दिनों में मैंने माइंडफुल होकर ये देखा है कि मैंने अपनी कितनी इबादत की हैं, मेरा अपना बिहेवियर क्या था, तो होगा क्या, तकवा कैसे बना। तकवा का इस महीने में नहीं पता चलेगा किरण, हमें आफ्टर रमज़ान ये जो हम माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज करेंगे, वी विल एक्चुअली गेट टू नो कि फाइन, जब मैं रमज़ान में ये सारे काम कर सकता था, कर सकती थी, तो मैं बाद में भी कंटिन्यू कर सकता हूँ। यू नो, दिस इज द पावर। क्या वजह है कि हम कंटिन्यू नहीं रखते हैं? ये हम बात करते हैं इस पे। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक पे जाने से पहले अब ज़रा हम ये जो वुड एप्पल है जी, है ना, उसकी ड्रिंक ज़रा हम सीखेंगे, स्मूदी, और इसमें हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, ऑल पर्पस मिल्क हम डालेंगे, ठीक है जी, 1 कप 100% डेयरी मिल्क, बेहतरीन क्वालिटी, हाइजीनिकली पैक्ड, और ना सिर्फ ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है बल्कि जो जानवरों से, जिन जानवरों से ये दूध और ये चीज़ वगैरह बनाते हैं ऑलपर्स, इनकी भी ग़िज़ाइयत का ख़ास ख्याल रखा जाता है ताकि फुल न्यूट्रिएंट से भरपूर दूध से हम अपने सुबह का आगाज़ करें। अच्छा, साथ ही साथ हम इसमें काजू डाल रहे हैं, ठीक है, किशमिश, ओके, और जो मैंने पल्प निकाला था उसको डीसीड करके बिल्कुल इमली के प्यूरे की तरह होता है, ठीक है, वो मैंने पल्प। ये कड़वा सा होता है, मीठा सा होता है? ये बिल्कुल टेस्टलेस है एक्चुअली, टेस्टलेस है, ठीक है। तो आप इसको किसी भी टेस्ट में डालेंगी, ये हो जाएगा। तो जैसे आप कह रहे हैं ना, सैलेड वैलेड में भी डाल दो, बिल्कुल, चाट में भी डाल दो, ठीक है। इसके अलावा मैं इसमें गुड़ डाल रहा हूँ, आप चीनी डाल सकते हैं, और 1 पिंच इसके मिठास को बरकरार मेंटेन करने के लिए नमक। अच्छा, ये डाला है। और अब मैं इसको ब्लेंड हमजा, आप बातें सुन रहे हैं अनम की? बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ, बड़े गौर से सुन रहा हूँ। माइंडफुल होना भी एक उसके लिए ना, जैसे कहते हैं, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और ये महीना हमें ये प्रैक्टिस सिखाता है ताकि हम बाकी महीने इस प्रैक्टिस को आगे लेके जा सकें। सही है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर ज़रा वापस आते हैं कि क्या वजह है कि हम इस महीने के बाद आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल, जो कि हम समझते हैं नॉर्मल, क्यों हो जाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। अजय जी, खुशामदीद। मेरे पास हाथ में लिस्ट आ चुकी है उन तमाम विनर्स की जो आज तमाम वाउचर्स जीते हैं, और यहाँ पर इफ्तारी भी शेफ़ हमजा ने तैयार कर दी है। आज आपको बैठने का मौका मिला है हमारे साथ, बहुत ही ज़बरदस्त। हाँ जी, और इन सब के विनर्स के नाम भी अनाउंस करूँगी, लेकिन अनम क्योंकि हमारे साथ हैं तो जाते जाते मैं चाहूँगी कि कोई ऐसी एक बात जो जिससे हमें फ़ायदा हो जाए, और जिस माइंडफुलनेस की आप बात कर रही हैं, इसको हम रमज़ान के महीने भी कंटिन्यू कर सकें। अच्छा किरण, मैं बस मुख्तसर सी बात करूँगी। अभी ब्रेक से पहले मैं आपको कह रही थी कि हम अपने तकवा को कैसे एलिवेट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, ज़ाहिर है ज़िक्र अस्कार है, अल्लाह ताला से क़ुर्बत है, जो भी आपके अपने स्पिरिचुअल नीड्स हैं, लेकिन माइंडफुल होने का मतलब ये है कि मैं खाना क्या खा रही हूँ से लेके मैं रात को सोने तक में
میرا کیا کیا ایکشن ہے, میرا کیا کیا ریئیکشن ہے, میں کیسے رسپانس کرتی ہوں. جب یہ ساری چیزیں ہم رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں تو بیسکلی دیکھا جائے اگر تو یہ قدرت کا ایک طریقہ ہے ہم سب کو مائنڈ فل ہونے کا. کوئی نہ بھی ہونا چاہے تو ہمیں ہونا پڑتا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کانشیس رہتے ہیں, کھانا لیں, چک نہ لیں, کچھ کہہ نہ دیں, اور اگر غلطی سے کچھ غلطی ہو جائے تو ہم بہت نیکسٹ ڈے کے لیے کوشش کرتے ہیں, رائٹ. تو یہ ساری چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو سکتی ہیں. ایک چھوٹی سی چیز میں کہوں گی کہ رمضان میں ہی صرف ہمیں پیس نہیں ملتا, اللہ نے ہم سب انسانوں کے اندر اپنا نور سکون کی شکل میں بنا کے بھیجا ہے, ہمارے اندر ان بلٹ ہے. بالکل, وہ ہمیں کہیں اور سے نہیں ملے گا کہ میں کہوں کہ جی آپ مجھے سکون دے دیں گے. نہیں, اگر میں کوئی بھی ایک ایسا عمل کرنا شروع کر دوں کہ جس سے دوسرے کو میری زبان سے, میرے ایکشن سے, میرے تھاٹ سے, میری سوچ سے تکلیف نہ پہنچے, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں آپ کے اورا میں, آپ کی باڈی میں پیس ڈیولپ ہو جائے گا. بالکل. آپ کہیں پر بھی کام کر رہے ہیں, آپ اپنے گھر پر ہیں, آپ باہر ہیں, آپ دفاتر میں ہیں, صرف یہ مائنڈ فل ہو جائیں کہ رمضان میں نہیں, رمضان کے بعد بھی. آئی نو کہ اس والے دور میں یہ چیلنجنگ ہے کہ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور ٹریفک میں ہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ مشکل ہے, بٹ اگر میں صرف یہ سمجھ لوں کہ میری ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچ سکتی تو ہوگا یہ کہ وہ آٹومیٹکلی کانشیسلی آپ کا پیس بھی آپ کے پاس رہے گا اینڈ آپ اوور آل بھی مائنڈ فل رہیں گے. آئی تھنک رمضان مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ جو چیز سکھاتا ہے وہ پیس سکھاتا ہے اور کنٹینٹمنٹ سکھاتا ہے. کنٹینٹمنٹ. بس اگر آپ اپنا بھلا چاہتے ہیں, زندگی اچھے سے سکون سے گزارنا چاہتے ہیں, مائنڈ فل ہونا بہت ضروری ہے, کانشیس ہونا بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ انم, آپ آئیں, انشاءاللہ آگے بھی کبھی ہوگا تو آپ کو ضرور ہم دعوت دیں گے. یہاں پہ ونرز کے نام پہلے اناؤنس کروں گی اینڈ دین اقصیٰ, کیونکہ ہم شروعات بھی آپ ہی کے آواز میں ایک کلام سے کرتے ہیں تو اختتام بھی آپ ہی سے ہوگا. موون پیک کراچی کا جو واؤچر ہے وہ سمرا کے پاس گیا ہے. پورٹ گرانڈ کراچی کا فرا نے جیتا ہے. راجدھانی ریسٹورانٹ طارق صاحب آپ کو جاتا ہے. بیسٹ ویسٹرن پریمیئر اسلام آباد علی نے واؤچر ون کیا ہے. بیچ لگژری ہوٹل کراچی سے لبنہ نے ون کیا ہے. مسرت مصباح کے ہمارے پاس 2 گفٹ ہیمپرز تھے اور ایک پشاور سے بشیر صاحب کیا کریں گے ویسے, خیر اینی ویز وہ آپ کو نہیں کسی دے دیں گے. اور مسرت مصباح کا دوسرا واؤچر فیصلہ آباد سے شمائلہ نے ون کیا ہے. 365 اسلام آباد سے واجد نے ون کیا اور ہمارے پاس پیزا میکس کے بھی واؤچرز تھے جو رومانہ نے ون کیا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور اب ہماری ٹرانسمیشن کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو رہا ہے, لیکن جاتے جاتے ہم اقصیٰ کی آواز میں کلام سننا پسند کریں گے. اقصیٰ میری طرف سے سب کو خدا حافظ, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اسی ٹائم پہ. جی اقصیٰ. بے نوا کی نوا سنتا ہے, التجا سب کی خدا سنتا ہے. ہم کے بندے ثنا کرتے ہیں وہ کہ خالق ہے, صدا سنتا ہے کہ میں بندہ عاصی ہوں, میں بندہ عاصی ہوں, خطا کار ہوں مولا مولا, لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا, میں بندہ عاصی ہوں.